Okay, in the last session, we covered our first topic, need to manage IT, in which we discussed the case study of Richcon Steel. Today, we are going to discuss our second topic, information technology and business models, in which we see that how information technology can be incorporated into the organization to either improve or enhance their existing business models or create new business models for them. There are two readings for today's topic. First is the thriving in an increasingly digital ecosystem, and the second reading is branding in the age of social media. Then there are three case studies. Number one, Taco Bell. Second is Tale of Two Airlines in the Network Age. And the third case study is the ITC eChopal initiative. So now let's come to the first reading of today's topic, and that is branding in the age of social media. As I have told you earlier, that I shall be covering these readings in a brief manner. I shall be highlighting the important points, and then it will be your prime responsibility to go through these readings in detail and to see how different examples have been quoted and build a comprehensive understanding of the topic that we are talking about. Okay, so this particular case study, branding in the age of social media. Okay, now this reading talks about the branding efforts done by the companies, and it actually focuses on how the branding efforts of the firms or the companies have changed in the age where social media has taken the center stage. ठीक है जी. So अगर हम एक नट शेल में हम बात करें, ठीक है, आइडिया एंड ब्रीफ, ठीक है, तो वो ये है. ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है? Companies have sunk billions of dollars into producing content on social media, hoping to build audience around their brands, but consumers have not shown up. ठीक है जी, ये कॉन्टेक्स्ट है कि जनाब हमने जो है वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो की है सोशल मीडिया कंटेंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इस उम्मीद पे कि जनाब के ऑडियंस आएगा, लोग हमारे पास जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे. बट दिस हैज नॉट हैपेंड एक्चुअली. सो in the views of author of this article, what could be the problem? Social media has transformed how culture works. Digital crowds have become powerful cultural innovators. A new phenomena called crowd culture. They are now so effective at producing creative environment that it's impossible for companies to compete. तो वो ये कहता है जनाब कि ब्रांडिंग की जो एफर्ट होती है, ठीक है, जो कंपनीज एफर्ट करती हैं, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंटली बेस करती है इस बात पर कि आप जो कंज्यूमर्स जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस कल्चर में जो है वो आप किस तरह से जो है वो अपना एक इनरोड बनाते हैं, या कल्चर में जो है वो आप किस तरह से जो है वो एंटर होते हैं, हाउ यू बिकम part of the culture to which the consumer belongs. This is the focus of any branding effort by any company. तो वो कहता है कि जनाब कि ये पहले जो है जो होता था, ठीक है, कल्चर को जो है वो जिस तरह से जो है वो समझा जाता था, ठीक है, ये कंज्यूमर जिस कल्चर से बिलोंग करता था, ठीक है, दिस कल्चर हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर. अब वो कहता है कि जनाब के पहले जो कल्चर होता था, अब कल्चर की एक नई फॉर्म जो है सामने आ गई है, जिसको हम कहते हैं क्राउड कल्चर. अब क्राउड कल्चर क्या है? क्राउड कल्चर का मतलब जो है वो ये है कि सोशल मीडिया ने आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि जनाब आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है वो अगर सेम थॉट शेयर करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेम बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते हैं, राइट, then you can form your own community on the social media, and this particular community can have its own culture. ठीक है, तो जिसको वो ऑथर जो है वो रेफर कर रहा है क्राउड कल्चर के नाम से. ठीक है, कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ जियोग्राफी से जो है वो दे कैन कनेक्ट टुगेदर, they can have their own thoughts, they can have their own ideologies, and then they can form their own culture. ठीक है, जो कि हो सकता है उनका जो कल्चर जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हो उससे वो डिफरेंट हो, लेकिन
ये क्राउड कल्चर, ये फिनोमेना जो है ये अब इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो गया है कि जब तक जो है वो कंपनीज जो है वो ये नहीं समझ रहे कि क्राउड कल्चर जो है वो क्या चीज़ है और उनकी जो ब्रांडिंग एफर्ट है, ठीक है, वो इस क्राउड कल्चर को किस तरह से जो है लेवरेज कर सकती है। ब्रांडिंग एफर्ट जो है वो सक्सीड नहीं कर सकती। अब ऑथर की नज़र में कि जनाब कंपनीज को जो है वो अब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू और व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो द ऑथर सजेस्ट दैट while crowd culture has deflated conventional branding models, it actually makes an alternative model, cultural branding, even more powerful. In this approach, brands collaborate with crowd cultures and champion their ideologies in the marketplace. तो अब ऑथर ये कहता है जनाब कि आपने इस क्राउड कल्चर को इस्तेमाल करना है टू डेवलप कल्चरल ब्रांडिंग, ठीक है। इस अप्रोच में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो है कंपनी जो है वो ब्रांडिंग एफर्ट जब करती थी तो कंटेंट बनाते वक्त जो है वो दे टेक द लीडिंग रोल, ओके, they develop the content, they provide the content to the consumers consume this content, right, and that's how the brand actually develop. अब बहुत सारी ये कह रहा है कि जनाब कि अब ऐसा नहीं है, now you cannot take the lead, what you need to do is that you need to collaborate, ठीक है, collaborate का वर्ड लिखिएगा, वो कहता है कि आपको अब क्राउड कल्चर्स के साथ, ठीक है, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्हें जो है वो सेंटर स्टेज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्राउड कल्चर के साथ सक्सेसफुली कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, और आप उनकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने ब्रांड को जो है वो अगर आप पोजीशन कर सकते हैं, देन यू कैन सक्सेसफुली बिल्ड योर ब्रांड, अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सेसफुली बिल्ड योर ब्रांड, ओके। तो दिस इज द होल आइडिया, ठीक है, कि जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, स्पेशली सोशल मीडिया, उनके आने के बाद नाउ वी सी दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द टाइप ऑफ कल्चर वी सी। और स्पेसिफिकली जो है वो ये कहता है कि जनाब के अब ये जो न्यू कल्चर है जिसको क्राउड कल्चर का नाम दे रहा है, वो कह रहा है कि जनाब के ये अब इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एंटरटेनमेंट के जो है ऑप्शन थे, जैसे टेलीविजन हो गया या सो दूसरे ऑप्शन की आप बात करें, मैगजीन हो गए, ठीक है, दीज वर ओलिगोपोलीज, ठीक है। हम बुनियादी तौर पर जो है वो डिपेंडेंट थे इनके ऊपर एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक ब्रांड जो है वो किसी पॉपुलर टीवी शो के दरमियान में जो है वो अपना ऐड चला दिया है, ठीक है, तो अब हम मजबूर हैं कि जनाब कि हमने जो है वो अगर उस टीवी शो को देखना है तो टीवी शो को देखने के लिए हमें उस ऐड को जो है वो वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में हम क्या देखते हैं कि हमें जो है वो फैसिलिटी दी जाती है, हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें एड्स को देखना है या नहीं देखना। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि वी हैव द पावर दैट we can say no to not watching the content provided by the brands or the companies. So this is how the whole branding effort is actually changing. Okay, so once we know the background of this, so let's say what the author actually suggests that how we should go about it. Okay. So if you can see this particular example, how one brand uses celebrities to break through. अब ऑथर तो ये सजेस्ट करता है कि आपने ये देखना है कि ये जो क्राउड कल्चर की जो है वो जो दो टाइप्स वो डिफाइन करता है, एक वो कहता है सब कल्चर और दूसरी वो कहता है आर्ट वर्ल्ड। सब कल्चर आर्ट वर्ल्ड का मतलब जो है वो ये है कि ये वो लोग हैं कि जो एक्चुअली दे बिलोंग टू सम फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है, दे मे बी माइल्स अपार्ट physically, but social media has provided them an opportunity to actually come together and form a group. इसमें वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल की वो बात करता है, जैसे आपके पास ई स्पोर्ट्स है। आजकल आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है कि जो लोग फॉर एग्जांपल जो गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग करते हुए वो अपने गेम की जो है ना वो एक कमेंट्री जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड then they upload this game commentary on the YouTube, and this field has actually become so much popular, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है मल्टीपल एग्जांपल दिए हैं गेमर्स की अराउंड द ग्लोब।
कि जिन्होंने बेसिकली अपनी जो एक जो गेमिंग कमेंट्री थी, ठीक है, उसको जो है वो एडिट किए बगैर एज इट इज जो है उन्होंने जो है वो एक शॉर्ट फिल्म की सूरत में जो है उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और रिजल्ट जो है वो ये हुआ कि जनाब के दे वर एबल टू अचीव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ऑथर ये कहता है कि जनाब कि इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी, ठीक है। ये जो दो अब आपके पास जो कल्चर की जो है टाइप्स आ गई हैं, एक सब कल्चर है और एक ये जो आर्ट वर्ल्ड है, वो कहता है कि जनाब कि हर कल्चर जो है वो अपनी एक आइडियोलॉजी रखता है। और ये जो आइडियोलॉजी है, जब तक जो है वो आप इस आइडियोलॉजी को के साथ अपने आप को अटैच नहीं करते, आप अपना जो ब्रांड है, उस ब्रांड को जो है वो इस आइडियोलॉजी के साथ जो है वो आप अलाइन नहीं करते, तब तक जो है वो आप कंज्यूमर्स की अटेंशन जो है ग्रैब नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये जो पर्टिकुलर पेज आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, इसमें जो इन्होंने कैंपेन जो है मेंशन की है अंडर आर्मर, जो कि बेसिकली नाइकी ने लॉन्च की थी। तो इसमें जो खातून जो है ये आपको जो सामने नजर आ रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पर शी वाज फैट इनफ, ठीक है, कि जब इसने जो है वो अप्लाई किया कि जनाब के मतलब मुख्तलिफ कंपनी में कि जनाब कि आई वांट टू बी ए बैले डांसर, तो उन्होंने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कि आपकी फिजिक जो है वैसे नहीं है कि आप जो है वो बैले डांसर बन सके। बट शी डिड नॉट लूज होप, शी वर्कड हार्ड एंड मेड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, एंड फाइनली शी बिकेम अ सक्सेसफुल बैले डांसर। तो अब यहाँ पे जो आइडियोलॉजी जो इस्तेमाल की गई, वो ये इस्तेमाल की गई कि जनाब अगर आपके पास जो है वो विल है, देन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। और इसमें फॉर एग्जांपल जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, या फॉर एग्जांपल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कि जी क्या यू आर अ फीमेल, यू कैन नॉट डू समथिंग, ओके। सो दिस आइडियोलॉजी ब्रेक्स देयर बैरियर। वो कहते हैं नहीं जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये जो जेंडर में जो बैरियर जो आप लगा रहे हैं, जेंडर बैरियर को जो है वो हम जो है वो नहीं मानते, ठीक है। और दिस इज एन एग्जांपल कि जहाँ पे जो है वो खातून ने जो है बात को प्रूव किया कि अगर आपके अंदर विल है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि अब ये इस थीम के अराउंड, ठीक है, ये जो थीम थी अंडर आर्मर, ये किस आइडियोलॉजी को फॉलो करी थी कि जेंडर बैरियर जो है कोई चीज नहीं होती, ठीक है। if you have the will, you can do it, okay। So this is how they became successful। लेकिन अगर नाइकी भी जो है वो पुरानी जो स्ट्रेटजी थी वो अगर फॉलो करता कि जनाब के ब्रांडेड कंटेंट जो है वो फेसबुक पे पोस्ट करता, ठीक है, और मे बी जनाब एक्सपर्ट्स को हायर करता, ठीक है, कि जनाब के ब्रांडेड कंटेंट जो है बड़ा प्रोफेशनल हो, दिस एंड दैट, अगर वो कंटेंट किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा होता कि जो कि कंज्यूमर जो है वो आजकल फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो सारी की सारी जो उसकी एफर्ट थी वो फेल हो जाती। तो रिमेंबर जो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है ये जो क्राउड कल्चर है, क्राउड कल्चर को जो है आपने लेवरेज करना है। और क्राउड कल्चर के अंदर जो है वो हम बात कर रहे हैं दो कल्चर्स की, एक है सब कल्चर और दूसरा है जो है वो है आर्ट वर्ल्ड, ओके। अब यहाँ पे वो बात करता है ऑथर कि जनाब कि आपने जो कल्चरल ब्रांडिंग को जो है जो अगर आपने लेवरेज करना है, देन देयर आर सर्टेन स्टेप्स or certain principles that you can follow in order to leverage the cultural branding and build the strong brand, okay। So पहली चीज क्या जनाब, map the cultural orthodoxy। uh, what it means in cultural branding, the brand promotes an innovative ideology that breaks with category conventions. To do so, to do that, it first needs to identify which conventions to leapfrog, what I call the cultural orthodoxy। तो फॉर एग्जाम्पल जनाब हम कहते हैं कि जी कि पहले जमाने में जो है वो एक जैसे खाने की हम मिसाल ले लें, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड के बारे में जो है वो एक ज़माने में जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली कि जनाब के प्रोसेस्ड फूड जो है वो हेल्थ के लिए जो है वो ठीक नहीं होता और हमें जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो है कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन पुराना माना था कि जिसमें जो है वो जो मीडिया था, ठीक है, वो कंपनीज के ज़रिए असर था। तो वो जो ग्रुप्स है कि जो कि इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे थे कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती, मतलब एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी that processed food is not good for the health and we should go for the natural food। लेकिन उस जमाने का जो मीडिया था, ठीक है, वो कंज्यूमर्स के कंट्रोल में ज़्यादा जो है वो नहीं था, कंपनी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा था। हम उस आइडियोलॉजी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरवर्ड नहीं करवा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद हमारी जो आइडियोलॉजी है हम उसको जो है वो ना सिर्फ फोकस कर सकते हैं बल्कि हम उसको एडवांस भी कर सकते हैं। तो पहली चीज जो है वो आपको जो ब्रांड्स को करनी है वो ये करनी है कि उन्होंने जो है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पिक करना है, ठीक है। क्राउड कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो उस क्राउड कल्चर में किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को उन्होंने पिक करना है और उसके बाद जो है वो उस आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है उन ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट करना है, ओके। दी सेकेंड प्रिंसिपल is locate the cultural opportunity। As time passes,
Disruptions in society cause an orthodoxy to lose traction. Consumers begin searching for alternatives, which opens up an opportunity for innovative brands to push forward a new ideology in their categories. तो जनाब अब हमने जो है वो नेचुरल फूड की हमने बात की, ठीक है, कि एक नई आइडियोलॉजी सामने आई है कि नेचुरल फूड जो है या जो प्योर फूड है उसको जो है कंज्यूम करना चाहिए। तो ये अब एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जिसके अंदर आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप कहेंगे हाँ जी नेचुरल फूड जो है कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन नेचुरल फूड्स में जो है फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वेरिएशन है या फॉर एग्जाम्पल ये वो चीज़ है कि जिसको जो है वो आप अगर कंज्यूम करें तो आप की हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द कल्चरल अपॉर्चुनिटी। यू आर स्टिल following the same ideology, but within this ideology you are looking for a particular opportunity for your brand. थर्ड प्रिंसिपल क्या है जनाब? थर्ड प्रिंसिपल ये है जनाब के टारगेट द क्राउड कल्चर। ठीक है, आपने अब ये देखना है कि जनाब की ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपने आइडेंटिफाई की है, अब इसको जो है आप टारगेट करें, इसमें से जो है वो नीश निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर आपका ब्रांड फिट हो सकता है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल, diffuse the new ideology. ठीक है, once you have followed the other three principles, the fourth principle is diffuse the new ideology. मतलब अब आपने अपनी मतलब उस आइडियोलॉजी को जिसको हमने टारगेट किया है, जिसका अब आपने एक नया वेरिएंट जो है डेवलप किया है, अब आपकी एफर्ट होगी कि अब उस नई आइडियोलॉजी को आप अपने उस क्राउड कल्चर के अंदर डिफ्यूज करें। The fifth principle is innovate continually using cultural flashpoint. अच्छा, अब एक आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा लोग जो हैं वो उस एक आइडियोलॉजी के साथ जो है वो स्टिक नहीं करेंगे, राइट? दिस आइडियोलॉजी विल चेंज। ठीक है, लोगों की जो है वो सोच चेंज होगी। तो अब आपने का काम जो है वो ये होगा कि आपने जो है वो ये देखना है कि जनाब कि ये जो किस क्राउड कल्चर को मैं फॉलो कर रहा हूँ या फॉर एग्जांपल मैं लेवल कर रहा हूँ, वो क्राउड कल्चर जो है वो किस तरह से जो है चेंज हो रहा है, या फॉर एग्जांपल उसकी आइडियोलॉजी में जो है वो किस तरह से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। और आपने इन चेंजेस को जो है वो क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करना है, और इन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है दैट यू इनोवेट कंटिन्यूअली। ठीक है, now, if we sum up this particular reading, okay, then what we would say, for example, if we read this heading, competing for crowd cultures, to brand effectively with social media, companies should target crowd cultures. Today, in pursuit of relevance, most brands chase after trends, but this is a commodity approach to branding. Okay? Hundreds of companies are doing exactly the same thing with the same generic list of trends. It's no wonder consumers don't pay attention. By targeting novel ideologies, following out of crowd cultures, brand can assert a point of view that stands out in the overstuffed media environment. तो यहाँ पे दो चार इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें क्या नजर आती हैं कि जनाब आप आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो ब्रांडिंग कर रही हैं, ठीक है, इट्स अ कमोडिटी अप्रोच टू ब्रांडिंग। अब कमोडिटी अप्रोच टू ब्रांडिंग का मतलब क्या है? कमोडिटी का मतलब जो है वो क्या होता है कि नो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। इसका मतलब जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो ब्रांडिंग एफर्ट्स हैं उसमें कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। तो अब ऑथर ये सजेस्ट करता है कि आपने अगर अपनी ब्रांडिंग एफर्ट को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कंज्यूमर आपके ब्रांड की तरफ अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करेगा। तो वो कहता है कि इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट योर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी यू नीड टू टारगेट द क्राउड कल्चर्स। ठीक है, यू नीड टू लेवरेज देम, यू नीड टू फॉलो देयर आइडियोलॉजी, एंड विद इन दिस आइडियोलॉजी you need to place your brand, right? You may come up with another variant of this particular ideology that the people are following, right? And then you can diffuse this ideology within this crowd culture using your brand. But what you need to do is that you need to innovate continuously using any cultural change that can takes place as the time passes. Okay, ji? So this is the overall summary of this particular article, and now I shall move on to the second article, and the title of this article is thriving in an increasingly digital ecosystem. Okay, now let's see what is the bottom line of this particular article. So if you look at the page that is open in front of you and you look at the right hand side, so the leading question that this particular article addresses is
How should companies prepare for digital disruption of their business? डिजिटल डिसरप्शन का मतलब जो है वो ये है कि जैसे जैसे जो है वो नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारी लाइफ में या दुनिया में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज ने बिजनेसेस जिस तरह से किए जाते थे उसको जो है वो फंडामेंटली जो है वो चेंज करके जो है रख दिया। मिसाल के तौर पर जो है अगर हम लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ऊबर, ठीक है, ऊबर जो है वो एक डिजिटल डिसरप्शन किस तरह से, क्योंकि इन्होंने जो टैक्सी बिजनेस था, ठीक है, उसे जो है फंडामेंटली चेंज करके रख दिया। ठीक है, पहले जो है फॉर एग्जांपल टैक्सीज जिस तरह से ऑपरेट करती थी, कंज्यूमर्स उनको जिस तरह से यूज करते थे, ऊबर के आने के बाद या करीम के आने के बाद या फॉर एग्जांपल ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन है, ठीक है, इनके आने के बाद जो है ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है ये फंडामेंटली जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, देन द सेकंड क्वेश्चन इज दैट द फाइंडिंग, आर्टिकल की फाइंडिंग क्या है? तो आर्टिकल की फाइंडिंग जो है वो ये है कि the companies should use digital techniques to know more about their customers and help solve their life event needs. Companies that operate strictly as suppliers will be under growing pressure. Consider developing a digital ecosystem and partnering with others, even competitors. तो ये तीन की फाइंडिंग्स हैं इस आर्टिकल की जो कि आपको ध्यान में रखनी है. Now, if move forward so that you can understand these key findings in depth. Okay, so if we look at our screen at the paragraph that I have highlighted, among the disruptors board members worried about the most were Uber, disrupting taxis, Airbnb, disrupting hotels, Apple Pay, Cabbage, Venmo, and others, disrupting banks, and Amazon, disrupting booksellers and retailers of many other products. तो अब जो हमने पहले बात की थी डिजिटल डिसरप्शन की, तो यहाँ पे जो है वो जो डिफरेंट डिसरप्शन है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है वो कर हो रही हैं, उसकी जो है वो बात की गई है. ठीक है, मैंने आपको जो है ऊबर की एग्जांपल दी थी. नाउ देयर आर सम अदर एग्जांपल्स दैट हैव बीन कोटेड कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है वो डिसरप्शन कॉज कर रही हैं. और ये डिसरप्शन क्यों कॉज हो रही है? बिकॉज दीज कंपनीज आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज इन इनोवेटिव वेज दैट अदर कंपनीज हैव नॉट यूज्ड. ओके, नाउ what this article does, I have already told you the key finding this article. Now the premise of this article is that this article presents a framework supported by examples and financial performance impacts for helping managers to think about their competitive environments in the digital era. अब वो कहता है कि जनाब कि आपका जो बिजनेस है वो एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है. कहता है कि जनाब कि आप देखें कि आपका जो बिजनेस है इस फ्रेमवर्क में कहाँ पे जो है वो लाई करता है. ठीक है, ये फ्रेमवर्क जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है जिसमें एक्स एक्सेस पे जो है उन्होंने जो है बिजनेस डिजाइन को रखा है और वाई एक्सेस पे जो है वो उन्होंने नॉलेज ऑफ एंड कंज्यूमर को रखा है. तो अब अगर हम इसको जो है वो जरा देखें, ठीक है, तो व्हाट द ऑथर सेज इन सेलेक्टिंग द राइट बिजनेस मॉडल, ठीक है, business leaders have four distinct options. ठीक है, अलोन और इन कॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि जनाब कि आपकी मर्जी है कि ये जो मैंने फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया है इसमें से जो है वो आप एक मॉडल ले लें या आप कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स जो है वो ले लें. With associated capabilities and relationships, executives need to determine the extent to which they want to control the value chain or drive or be part of an ecosystem that delivers on the end customers' total needs. And number two, the extent to which they know about the end customer's goal. ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं कि जिसपे जो एग्जेक्टिव्स हैं या बिजनेस मैनेजर्स हैं उन्हें जो है वो सोचना है इससे पहले कि वो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो सिलेक्ट करें या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल को सिलेक्ट करें. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो चार मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओमनी चैनल बिजनेस जो है वो होते हैं कि जो कि डिफरेंट जो है वो चैनल इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जिसकी जो है फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल जो है वो ये बैंक्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं. तो अगर हम देखें मतलब इसको इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, तो ओमनी चैनल बिजनेसेस जो है वो बिजनेसेस हैं कि जिनकी नॉलेज ऑफ एंड कस्टमर जो है, ठीक है, वो कंप्लीट है, राइट, बट दे आर पार्ट ऑफ अ वैल्यू चेन. ठीक है,
सिमिलरली अगर हम इकोसिस्टम ड्राइवर की हम बात करें, ठीक है, जिसकी जो एग्जांपल है वो है अमेज़न। इसको भी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम ड्राइवर। तो अमेज़न इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम ड्राइवर, और एक इकोसिस्टम ड्राइवर जो है एक ऐसा बिजनेस होता है कि जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है और एंड कंज्यूमर की कंप्लीट नॉलेज भी रखता है। ओके, इसके बाद जो है वो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट मूव करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सप्लायर आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनाब जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड वाया ब्रोकर हो गया, ठीक है। ये वो बिजनेसेस हैं कि जिनकी एंड कंज्यूमर नॉलेज जो है वो पार्शियल होती है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि दे आर सप्लायर, ठीक है, एंड दे यूज अ थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ओके, एंड दे आर पार्ट ऑफ अ वैल्यू चेन। अब ये वो टाइप ऑफ बिजनेस है कि जिसके बारे में जो है वो जो आर्टिकल है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि जनाब के दे नीड टू रियली थिंक अबाउट देयर ओन बिजनेस, ठीक है, कि इन्होंने जो है वो अब क्या करना है, क्योंकि अगर जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सप्लायर बने रहेंगे तो इनके लिए जो है वो आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। देन इसके बाद जो है वो जो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं मॉड्यूलर प्रोड्यूसर के, जिसमें उन्होंने जो है वो एग्जांपल दिया है पेपैल की, ठीक है। तो ये वो बिजनेसेस हैं कि जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कस्टमर की नॉलेज जो है वो इनकी जो है वो इनकी भी जो है वो पार्शियल होती है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये एक एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। दे do not really connect with the customers themselves. They let the businesses connect with their customers. Now, each type of business model that this article has discussed has certain implications. ठीक है, कि अगर आपको थ्राइव करना है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस जो है वो इस पर्टिकुलर मॉडल को चूज करता है, राइट, सो इन ऑर्डर टू थ्राइव यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट दे नीड टू फेस। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ओमनी चैनल मॉडल की हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, the challenge is to gain more and more knowledge of the end consumer and his or her goals and reduce the amount of customer churn. तो अगर आप एक ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आपका मेजर चैलेंज जो है वो ये है कि आप एंड यूजर की जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं एंड कंज्यूमर के बारे में वो आप हो। और सेकेंडली जो है वो ये है कि आपने इस बात के ऊपर फोकस करना है कि आपका कस्टमर जो है वो आपके पास से ना आ जाए, जिसको वो कह रहे हैं, जिसको कहा जाता है कस्टमर चर्न। इसके बाद जो सेकंड है, ठीक है, वो है इकोसिस्टम ड्राइवर मॉडल, जिसकी हमने एग्जांपल दी थी अमेज़न। सो इफ योर कंपनी और बिजनेस वांट टू बिकम एन इकोसिस्टम ड्राइवर, व्हाट इज द चैलेंज? An ecosystem needs to be a destination for customers in a specific domain. For example, healthcare, retail, entertainment, financial services or small businesses. तो अगर आप एक इकोसिस्टम ड्राइवर जो है बनना चाहते हैं या अपने बिजनेस को जो है फोकस करना चाहते हैं टू बिकम एन इकोसिस्टम ड्राइवर, then you need to understand that you will have to focus on one particular domain, right? Because you want to excel in that particular domain and you want to become the first choice of the customer, ठीक है। When they talk about which ecosystem or which platform they are going to use in a particular domain. For example, if you talk about retail, right? So every consumer or everyone, right? If you talk about कि जी कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म या कौन सा इकोसिस्टम जो है वो आप चूज करेंगे इफ यू आर इन रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है, कोई आपको प्रोडक्ट सर्च करनी है या आपने कोई चीज बाय करनी है, वेयर यू वुड गो, ठीक है। तो अनडिस्प्यूटेड मतलब डिस्प्यूटेडली आप बहुत से जो लोग जो है वो ये कहेंगे कि amazon.com, दिस इज हाउ amazon.com हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स importance or its relevance or its significance in the retail sector. So if you are thinking of becoming an ecosystem provider or ecosystem model, this is what you need to do. You need to excel in a particular domain. You need to become a model, or you need to become a platform provider of choice in a particular domain. Now, the modular producer model. If you want to pick up the third model, that is the modular producer model. So what is the challenge? To survive, modular producers must be among the best in their category. To thrive, they need to continue rolling out new products and services to demonstrate that they are among the best options available and also well priced. अच्छा, जो मॉडुलर प्रोड्यूसर मॉडल में हमने जो एग्जांपल दी थी वो दी थी हमने पेपैल की, ठीक है। और पेपैल के बारे में भी हमने जो है वो बताया था अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क कि इट इज एन इकोसिस्टम प्रोवाइडर। लेकिन ये एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइडर है कि जिसके पास कस्टमर की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो है वो नहीं होती, ठीक है, पार्शियल नॉलेज होती है।
तो अगर आपने जो है वो एक मॉड्यूलर प्रोड्यूसर मॉडल जो है वो डेवलप करना है, या आपने बिजनेस को जो है वो एज अ मॉड्यूलर प्रोड्यूसर जो है वो डेवलप करना है, so what you need to do is that you must become the best in your category once again, क्योंकि आप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एक पर्टिकुलर जो चीज है उसको आप टारगेट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी रिटेल की, फाइनेंशियल सर्विसेज की, हेल्थ केयर की, whatever. And then the other thing that you need to do is that you will need to continue innovation, continuously bring the new product and services so that the customer consider you the leader. Consider the customers always consider you the first choice in this particular domain. Okay. Then these are all the four business models that we have talked about. Okay. Now, if we move forward. तो अब कहता है जनाब, और जो ऑथर है, ऑथर कहता है कि जनाब कि नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर कंपनीज नीड टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज इन टू एरियाज। कहता है कि जी कि अब अगर आपको जो है वो आगे जाना है, थ्राइव करना है, प्रोग्रेस करना है, तो आपको जो है वो दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। पहला एरिया या पहले जो डोमेन है वो क्या है जनाब, लर्निंग मोर अबाउट योर कस्टमर्स। ठीक है, वो कहता है कि जनाब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर्स को जो है वो समझें और जानें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस सूरत में जो है आपके कस्टमर का जो चर्न है इट विल इंक्रीज। ठीक है, कस्टमर विल इवेंचुअली गो अवे फ्रॉम यू। तो हाउ टू डू इट? नंबर वन, यूज डिजिटल कैपेबिलिटीज टू इन्फॉर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स गोल्स एंड लाइफ इवेंट, जिसमें जो है फॉर एग्जांपल आपका जो है वो सोशल मीडिया भी जो है आ जाता है। ठीक है, एम्पलीफाई द कस्टमर वॉइस इनसाइड द कंपनी। कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के कस्टमर जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपका जो है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी है, लेकिन क्या कस्टमर की जो वॉइस है आपकी कंपनी में जो है वो उसको अहमियत दी जाती है? कस्टमर कस्टमर जो है वो आपको जो है अगर कोई सजेशन देता है तो क्या कस्टमर को जो है वो आप एक्नॉलेज करते हैं? क्या अपने एम्प्लॉइज को जो है वो आप ये जेस्चर देते हैं, या फॉर एग्जांपल आप ये बावर कराते हैं, या आप उनको जो है ये बात जो है मतलब उनको कहते हैं कि जनाब कस्टमर की जो वॉइस है, कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एम्फसाइज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। गट फीलिंग बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग है, आर्टिकल का जो ऑथर है वो कहता है कि जी गट फीलिंग बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, you must gather evidence before you make any decision with respect to your business. Then develop an integrated multi-product channel customer experience. अब वो कहता है कि जनाब के in the words of the author, making actual customer needs and goals central to the business model means that companies stop selling products and instead meet the customer's needs in the context of life event. वो कहता है भाई कि आप जो है वो सिर्फ ये नहीं करेंगे, आपने जो प्रोडक्ट आपकी आपके समझ में आती है आप उसको बना के जो है आप सेल आउट करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि कस्टमर जो है उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें उसकी नीड्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप उन नीड्स को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश करें। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सो व्हाट यू विल नीड एन एक्सटेंसिव एनहांस्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन। जब आपके पास कस्टमर की जो है वो एनहांस इंफॉर्मेशन होगी, आप कस्टमर को जो है बहुत अच्छे से समझेंगे, इन दैट केस you will be able to develop the product or services that can fulfill customer needs and not just simple product and services that you have developed. सेकंड एरिया जो है वो क्या है जनाब? सेकंड एरिया जो है वो ये है टू बिकम मोर ऑफ एन इकोसिस्टम। वो कहता है कि आपने जो है कोशिश जो है वो ये करनी है कि यू ट्राई टू बिकम एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम बनने के लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा? वो कहता है कि जनाब के आप पहली बात तो यू हैव टू बिकम द फर्स्ट चॉइस इन योर स्पेस। तो देखें बार बार जो है जो बात हो रही है वो ये हो रही है चॉइस की। ठीक है, फर्स्ट चॉइस एंड इन योर स्पेस। तो पहली चीज जो है वो ये है कि अगर आप इकोसिस्टम ड्राइवर बनना चाहते हैं, you will have to pick up one particular domain, and the second thing is what you will need to do is that you will have to work hard, you will have to innovate continuously so that you become the first choice of the customers in the particular domain in which you are operating. The second thing that you will need to do is that become great at building partnerships. ठीक है, हर दफा जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो आप कॉम्पीट नहीं करेंगे, कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे। ठीक है, यू विल आल्सो नीड टू कोलैबोरेट, यू विल आल्सो नीड टू बिल्ड partnerships. If you don't do that, then the life will become very difficult for you.
The third is the create service enabled interfaces that others can use. ठीक है, तो कहने की वो बात जो है वो ये है कि आपने अपना जो बिजनेस है, अपने बिजनेस का जो इंटरफेस है कि जिसको जो है वो कंज्यूमर जो है फेस करता है, ठीक है, आपने जो है वो उसको सर्विस ओरिएंटेड बनाना है, सर्विस. So basically, what the article author is advocating is that you need to build up the interfaces that faces your customers, which so that these interfaces become the service enabled, okay, easy to use, and so that the customers are attracted towards your business rather than distracted. Then treat efficiency and compliance as a competence. कहने का मतलब जो है वो ये है कि जी कि आपने जो है वो कंप्लायंस की बात हो रही है, मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आप एक डिजिटल इकोसिस्टम है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपैल की हम बात करें, कस्टमर का मतलब आपके पास जो है बहुत सारा डेटा जो है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, खास होता है फाइनेंशियल डेटा. तो जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कि जनाब के उस डेटा को जो है वो आपने किस तरह से जो है सिक्योर करना है, ठीक है, वो कंप्लायंस में आता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक जो है वो आप उन स्टैंडर्ड्स को जो है कंप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपका जो कस्टमर का डेटा है वो सिक्योर नहीं होगा, और जब तक आपका कस्टमर का डेटा सिक्योर नहीं होगा, तब तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकें. आर्टिकल ऑथर जो है वो ये कहता है कि जनाब कि आपने इस कंप्लायंस को एज़ अ कॉम्पिटेंस आपने ट्रीट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कंप्लायंस इसलिए करेंगे, आपको कंप्लायंस करनी है. आपको कंप्लायंस जो है वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप ये समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस जो है वो आपकी एक कॉम्पिटेंस है, ठीक है? जब तक जो है वो आप इन चीज़ों को जो है वो एज़ अ कॉम्पिटेंस नहीं लेंगे, उस वक़्त तक जो है वो आप थ्राइव नहीं कर सकते, ठीक है? So these are the highlights of this particular article. Okay, so kindly go through it, read it in depth, and if you have any question, if you have anything which is not clear, so I would request that you post your question with the complete reference on the Facebook page, so that I could reply it. Okay, Janab. Now moving on to our cases, and the first case that I am going to talk about on this particular topic is called the ITC E-Chopal Initiative. अच्छा, अब इस केस का मैं ब्रीफ बता दूं, ठीक है, इससे पहले कि जो है मैं उसको एक कंप्लीट एक डिटेल में जो है डिस्कस करूं, ठीक है. ITC ये बुनियादी तौर पर जो है ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है. ITC का जो एब्रीविएशन है, ठीक है, दे इनिशियली स्टार्टेड आउट एज द इंडियन टोबैको कंपनी, एंड उसके बाद जो है वो मल्टीपल जो है वो फेजेस से जो है गुजरते हुए, ठीक है, दे इवेंचुअली बिकम ITC लिमिटेड, ठीक है, विच इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन इंडिया. और इनका जो है वो एक एग्री बिजनेस डिवीजन भी है, ठीक है, और जिसमें ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो डील करते हैं. इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एक जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके साथ वो डील करते हैं वो है सोयाबीन, ठीक है. तो ये जो ITC ई चौपाल है, इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो किसान है, ठीक है, रूरल इंडिया का, जिस तरह से जो है रूरल पाकिस्तान का किसान है, ऐसी हालत जो है वो रूरल इंडिया में किसानों की है, ठीक है, कि एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है उनकी, ठीक है, वो इलिटरेट है, ठीक है, और इनके पास जो है वो ना तालीम है, ना जो बेसिकली जो मॉडर्न डेज फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन तक इनका एक्सेस भी नहीं है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन तक भी उनका एक्सेस जो है वो नहीं है. रिजल्ट जो है वो ये निकलता है कि ये जो एक पूरी वैल्यू चेन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है वो ये है कि जनाब का सोयाबीन जो है वो किस तरह से जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल फसल जो है वो उसको जो है वो कैसे जो है वो काटा जाएगा, फसल को किस तरह से जो है स्टोर किया जाएगा, इसके बाद जो है वो उसको मार्केट में जो है वो कैसे ले जाया जाएगा, उसको मार्केट में जो है कैसे सेल किया जाएगा, ठीक है. दिस होल वैल्यू चेन हैज सो मेनी इनएफिशिएंसी. किसान के पास जो है फॉर एग्जाम्पल वेदर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती, नतीजा जो है वो ये होता है कि अनफेवरेबल वेदर जो है उनकी फसलों को जो है वो तबाह कर देता है, ठीक है. तो उनकी मेहनत का जो पूरा फल है वो उनको जो है वो नहीं मिलता, ठीक है. मार्केट में जब लेकर जाते हैं तो एक थर्ड पार्टी कमीशन एजेंट के थ्रू जो है वो लेकर जाते हैं. तो थर्ड पार्टी कमीशन एजेंट जो है वो अगर जो है वो सही नहीं है, तो नतीजा जो है वो ये होता है कि जनाब की वो जो फसल बिकती है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कमीशन एजेंट जो है वो अपना कट जो है वो ज़्यादा रखता है. तो नतीजा जो है वो ये होता है कि जनाब के फार्मर जो है वो डिस्करेज होता है, क्योंकि फार्मर जो है समझता है कि जनाब कि मुझे जो है वो अच्छे पैसे जो है वो नहीं मिल रहे, ठीक है. जब फार्मर को जो है वो जब ये मतलब एहसास होता है कि जनाब को उसको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे,
तो नॉर्मली उसकी जो मोटिवेशन होती है टू टू प्रोड्यूस मोर सोयाबीन वो डिक्रीज हो जाती है। तो कमीशन एजेंट जो है वो तो फायदा उठा लेता है, लेकिन कंपनीज और फार्मर इन दो को जो है नुकसान होता है। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑन विच दिस होल केस इज बेस्ड। और इस केस का जो बेसिक प्रेमाइस है या जो मोटिवेशन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने के लिए, होल वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने के लिए। और जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि उस वैल्यू चेन का पार्ट है, कि जैसे यहाँ पर आईटीसी है, इसके अलावा फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से जो है वो बेनिफिट कर सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर उसको प्रॉपरली वैल्यू चेन में इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, सो दिस इज द साइनॉप्सिस जो कि मैंने अभी आपको जो है वो ऑलरेडी जो है मैंने आपको ब्रीफली जो है मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन and education on farming techniques also contributed to the fact that Indian soybean farmers earned only about 30 to 40% of the potential value of their farming effort. Now this is a huge number. ठीक है, अगर आप अपनी एफर्ट का सिर्फ 30 से 40% ठीक है बेनिफिट अर्न करते हैं, इसका मतलब जो है वो ये है कि 60 to 70% of your effort is gone, is wasted. That's a lot. तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये अगर आपकी वैल्यू चेन की एफिशिएंसी को अगर फॉर एग्जांपल 20% भी जो है अगर वो इम्प्रूव कर देती है, तो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, दीज फार्मर्स आर पुअर, दे आर नॉर्मली प्राइस टेकर्स नॉट द प्राइस कोडर्स। ठीक है, or they face a lot of difficulties. So if the technology can solve some of their most important problems, we can imagine that how the efficiency of this whole value chain can improve. Okay, okay, now moving forward. Okay, अब now what ITC is looking for, ITC जो है वो ये चाहता है कि जनाब की जो सोयाबीन की जो वैल्यू चेन है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब ये जो नया सिस्टम जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इन दिस रिस्पेक्ट, इसको उन्होंने नाम दिया है ई चौपाल का। ठीक है, चौपाल जो है वो सब लोग समझते हैं, चौपाल जो है बेसिकली इट्स एन हिंदी वर्ड। ठीक है, मतलब जो है वो ये है कि गैदरिंग। ठीक है, हर गांव में जो है एक चौपाल होती है। चौपाल का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के कोई ना कोई जो है वो घर होता है कि जहाँ पर जो है वो पूरे दिन के बाद शाम में या रात में जो है वो गांव के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जो जो बेसिकली जो फैमिली हेड्स हैं, नॉट होल फैमिलीज, ठीक है, जो फैमिली हेड्स हैं दे गैदर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, एक समझ लें कि एक इनफॉर्मल किस्म की जो है गैदरिंग होती है कि जिसमें जो है वो आप आपस में जो है वो बातचीत की जाती है, मसले मसाइल जो है और प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। एंड दिस चौपाल इज अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। किसी भी गांव में जाएं, इवन ये फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में भी जाए डिफरेंट गांव में जाएं, तो यू विल सी दिस ट्रेडिशन ऑफ चौपाल। नॉर्मली जो है जो चौपाल जो है वो जिस शख्स के घर में जो है वो होती है शाम में, ठीक है, नॉर्मली जो है वो या तो उस गांव का जो है वो चौधरी होता है या उस गांव का जो है बड़ा होता है। ठीक है, कि जिसको जो है वो तमाम लोग जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं और उसको जो है वो अपना कह लें कि अपना बड़ा मानते हैं। ठीक है, so if you read the last bullet of this presentation, this case discusses the achievement, opportunities, and challenges of the managers of this new supply chain. In addition, the case suggests that the long-term purpose of the e-Chopal may include the development of the untapped rural Indian marketplace. Okay. These are the teaching objectives. ठीक है, कि जो आप मतलब आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए आफ्टर गोइंग थ्रू द डिस्कशन ऑफ दिस केस। नंबर वन, इंक्रीमेंटल वर्सेस बिग बैंग अप्रोच। नाउ ई कॉमर्स के कोर्स में जो है मैं आपको जो है इसका डिफरेंस जो है मैं बहुत अच्छी तरह से जो है मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, जब हम ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट के जो है हमने केसेस डिस्कस किए थे कि जनाब के इंक्रीमेंटल वर्सेस बिग बैंग अप्रोच में जो है क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देन द यूज़ ऑफ आईटी इन अ वे दैट प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। Now you will understand after discussing this case के use of information technology in a business, how can this use provide corporate benefit as well as social benefit। ठीक है,
And the third teaching objective is the unique use of IT as an enabler of a new business. ठीक है. In this case, IT does not serve to automate an existing business, but instead provides a new way for businesses to be done and generates the potential for entirely new business. इस केस को पढ़ने के बाद जो है वो आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, वो सिंपली बिजनेस की ऑटोमेशन नहीं है. ठीक है. You are using information technology to develop a new business model. और हमारा ये जो आज का टॉपिक है जिसको मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन भी किया था, the topic is that how information technology can be used either to enhance the existing business models or develop the new business models. This case demonstrates how information technology can be used to create new business models. Okay, now moving forward now, the analysis of the case, these are the pillars or the most important dimensions on which we are going to analyze this case. The first is the ITC's objectives. Number two, what made this implementation successful? How did the principles espoused by the ITC overcome the obstacles facing the eChopal? How was value created in this model? Can everyone in the supply chain win? ITC's next steps and then applications of this model elsewhere. ओके जी. तो अगर आईटीसी ये ई चौपाल इनिशिएटिव जो है इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑफ कोर्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द प्रॉफिट. आईटीसी जो है वो समझता है कि अगर ई चौपाल को इम्प्लीमेंट किया जाए, यस, आईटी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए इस वैल्यू चेन में, तो ऑफ कोर्स इट विल बी प्रॉफिटेबल. It will not only be profitable for ITC, it will also be profitable for the farmers because they will be able to secure a higher worth of their output. The second objective is the social benefit. ठीक है. So आईटीसी का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी है कि अगर वो इस सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, सो व्हाट इट कुड डू समथिंग गुड फॉर इंडिया. ठीक है. हाउ इट वुड बी गुड फॉर इंडिया? इट वुड बी गुड फॉर इंडिया बिकॉज using this system would provide farmers with lot of empowerment. They would know what their effort is actually worth. ठीक है. They will have more information about their product, their practices, and so on. So in a way, having a greater amount of information would make them become more productive citizens of the Indian society. So this is the social benefit to which the ITC is looking for. पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर. ठीक है. एक और ऑब्जेक्टिव जो इस ई चौपाल इनिशिएटिव का है और आईटीसी इज दैट कि वो ये देख रहे हैं कि जनाब कि अगर ये ई चौपाल इनिशिएटिव जो है ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो अभी जो है फॉर एग्जांपल अभी तो हम डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर ये मॉडल जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसी मॉडल को जो है वो फॉर एग्जांपल दूसरी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे वीट है, ग्रेन है, जिसमें जो है ये इनका एग्री बिजनेस जो है वो काम कर रहा है, तो ये इसी सिस्टम को जो है वो दूसरी क्रॉप्स के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. टू एक्चुअली इंक्रीज द ओवरऑल गेन. और दूसरी चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि ये इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं अप स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के लिए. अप स्ट्रीम प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है जनाब? मिसाल के तौर पर क्रॉप इंश्योरेंस. ठीक है. क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स जो है उनको जो है अपने सिस्टम के साथ जो है वो आप लिंक अप कर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द फ्यूचर फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड ई चौपाल. अच्छा जी, अब हमें जो है थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो एक्चुअली बना कैसे था? ये एक्चुअली इस ई चौपाल के इनिशिएटिव में उन्होंने किया क्या है? तो उन्होंने जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो रॉकेट साइंस जो है वो यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए. उन्होंने बहुत सिंपल सा काम किया. उन्होंने कहा यार कि अगर आप जो है कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोई सोफिस्टिकेटेड हाई टेक टेक्नोलॉजी को जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो नतीजा जो है वो ये निकलना है कि क फार्मर्स जो है वो तो बेचारे पहले ही जो है वो इलिटरेट हैं. उन्हें लिखना पढ़ना जो है वो आता नहीं है.
ठीक है, ज़्यादा जो है वो ये है कि जो उनका एक पर्टिकुलर जो मतलब बंदा है जिसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केस में जो है वो रेफर किया गया है संचालक के नाम से। संचालक जो है ये बेसिकली जो आप समझ लें गाँव का जो है वो एक चौधरी टाइप आदमी है या सीनियर आदमी है कि जिसको जो है वो सारे गाँव वाले जो है ट्रस्ट करते हैं। ठीक है? अब जो है वो उन्होंने ये देखना है कि जो सिस्टम है, सिस्टम को जो है वो सिम्प्लीफाई किस तरह से किया जाए। तो उन्होंने किया सिंपल सा ये है कि जनाब कि उन्होंने जो है वो एक सैटेलाइट अ, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने एक एक इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर जो है, वो संचालक साहब के जो है वो घर में जो है रखवा दिया और उस कंप्यूटर के ऊपर जो है आईटीसी ने जो है वो जो एक वेबसाइट डेवलप की थी, ठीक है? उस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सिंपली जो है वो जो वेबसाइट जो है वो चलाई जाती थी, ठीक है? उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था और उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आईटीसी मार्केट की और वेदर की और बाकी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग, ठीक है? वो किसानों को जो है प्रोवाइड किया जाता था और ये जो वेबसाइट थी, इस वेबसाइट का जो एक्सेस था, ये फार्मर्स को भी था, गवर्नमेंट को भी था, तमाम लोगों को था, ठीक है? सो दैट आईटीसी कैन क्लेम के जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो जो है वो ट्रांसपेरेंट है और हम जो है वो बेसिकली किसी भी तरह से जो है वो जो फार्मर्स हैं, उनको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो अब सिस्टम जो है हमारे समझ में आ गया कि जनाब के गाँव का जो एक सीनियर पर्सन है कि जहाँ पे चौपाल लगती है जिसको हम संचालक कहते हैं, ठीक है? उसके घर में जो है वो हमने एक कंप्यूटर फिट कर दिया है। वो कंप्यूटर जो है उसको हमने सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने जो है वो आईटीसी ने एक वेबसाइट डेवलप की है। उस वेबसाइट पे जो है वो आईटीसी जो है वो उनको जो क्रॉप रिलेटेड या फार्मिंग रिलेटेड और वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको रियल टाइम में जो है प्रोवाइड करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जिस वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ये वेबसाइट का एक्सेस जो है वो हर एक को है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। ठीक है जी? अच्छा, अब ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है, ठीक है? ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो पहला एलिमेंट था, वो एलिमेंट था ट्रस्ट, ठीक है? अगर आप कोई भी नया काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी इनोवेटिव काम करने के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है? कि आप ये चीज़ जिन लोगों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इफ यू आर न्यू फॉर देम, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू विद दिस न्यू थिंग, ओके? इन्होंने इस चीज़ को क्लेवरली समझते हुए, ठीक है? इस इनिशिएटिव को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो उन्होंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि ये जो संचालक साहब थे, हर गाँव का जो संचालक था, ठीक है? उन्होंने उसको एक्सेस किया, ठीक है? पहले उन्होंने जो है वो उसको मोटिवेट किया, ठीक है? कि जनाब कि आप जो है वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है? हमारे एक चेंज एजेंट बने, ठीक है? उन्होंने संचालक को ट्रेन किया कि जनाब आपने जो है वो कंप्यूटर को जो है वो किस तरह से जो है वो ऑपरेट करना है, ठीक है? नाउ वन्स द संचालक वाज़ ट्रेन्ड, अब चौपाल में जब लोग आए तो संचालक को तो वैसे ही जो है वो ट्रस्ट करते हैं। तो अब अगर संचालक जो है वो उनको बताता है कि जनाब कि ये जो है ये एक सिस्टम है कि जो कि इस तरह से जो है वो चलता है और इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है, मैं भी जो है वो उसको रिलायबल समझता हूँ और ये जो है ये बड़ी यूज़फुल हो सकती है और मैंने भी इस्तेमाल की है और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अब संचालक का जो वर्ड ऑफ माउथ है, इट इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल because he is the person that everyone knows, everyone trusts. So if he is saying something, that the people are going to believe it. So that was the first element that the ITC used very cleverly in their use of information technology to implement a new system to improve this value chain of soybean. ठीक है जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्या था जनाब? क्लियर वैल्यू। ऑफ कोर्स, ई चौपाल इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जनाब कि पहली चीज़ जो है जो आप मतलब जो बेनिफिट है, वो है ईज़ी टू सी, ठीक है? आपने आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा बारिश कब होगी अगले आगे चल के, ठीक है? गर्मी जो है उसका हाल जो है वो क्या होगा? टेम्परेचर का हाल जो है वो क्या हाल होगा, ठीक है? मतलब और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीड करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आईटीसी जो है वो किसी भी तरह से जो है वो आपकी क्रॉप्स में इन्वॉल्व हो एंड सो ऑन तो उसमें जो है वो आईटीसी ने जो है वो कंप्लीट लिबर्टी दी हुई थी। उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अगर सिर्फ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, तो दैट्स फाइन, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट वी वांट यू टू gain more and more of the value of the crop that you are producing, ठीक है? So the value is actually clear,
to all the parties involved in this initiative. ठीक है, फाउंडेशंस इन एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर. कभी भी आप अगर कोई एक इनोवेटिव काम करने के लिए जा रहे हैं, या स्पेशली आप जब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मतलब जिस सेटिंग में आप आईटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप उस सेटिंग का जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, उसको आप डिसरप्ट करने की कोशिश जो है वो आप ना करें, बल्कि जो आपकी जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव है, उसे उस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर में डिफ्यूज करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर आपका जो आईटी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एग्जिस्टिंग जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको अगर आपने जो है वो डिस्टर्ब करना है, तो उस सूरत में जो है वो आपका चैलेंज जो है मज़ीद बढ़ जाएगा. क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये है कि आपके आपके मतलब जो जो टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, वो पहले ही जो है वो एक केओस, एक अनसर्टेनिटी, एक लोगों के अंदर जो है बेचैनी जो है प्रोड्यूस करेगा कि यार ये क्या नई चीज़ जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, या हमारे जो सेटिंग है या जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर आ रही है. ठीक है? उसके ऊपर जो है वो अगर आपने जो है सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया, तो नतीजा नतीजा जो है वो ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट दिस न्यू सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आईटीसी वेरी क्लेवरली आइडेंटिफाइड दैट फैक्ट एंड व्हाट दे डिड. उन्होंने कहा जनाब कि हमें जो है वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गांव में एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब कि चौपाल चौपाल जो है वो उनका एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है फॉर एग्जाम्पल एक लीडर होता है कि जिसको जो है सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं. तो जब हम अपने इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, तो हम जो है वो उसको इसी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है डिफ्यूज करेंगे, इसी सोशल स्ट्रक्चर को जो है पार्ट बनाएंगे, so that we face minimal resistance towards implementation of this new IT initiatives. And that's exactly what happened in this case. Choice. ठीक है, ई चौपाल में जो है वो कोई भी चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले कहा जनाब, वो मैंडेटरी नहीं है. पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि वो क्लियर वैल्यू है. मुझे जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन से जो है वो मैं अपनी वैल्यू चेन को मतलब अपनी अपनी क्रॉप को जो है अच्छा बना सकता हूँ, अपनी क्रॉप को जो है वो अच्छे दामों पर जो है वो बेच सकता हूँ. ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मेरे पास चॉइस है. अगर मैं चाहूँ तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आईटीसी के साथ जो है वो बिजनेस भी कर सकता हूँ, अपनी क्रॉप्स को जो है वो डायरेक्टली मैं आईटीसी को सेल भी कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जनाब कि मुझे जो है वो आईटीसी को जो है वो डायरेक्टली सेल जो है वो नहीं करना, मैं इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करूँगा, फसल उगाऊँगा, ठीक है? लेकिन फसल को मैं जाकर बेचूँगा मंडी में ही, मतलब जो पुराना तरीका है मेरा, ठीक है? तो उस पर जो है वो आईटीसी को कोई एतराज़ नहीं है। आईटीसी कहता है जी ठीक है, हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को लेके अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करके जो है वो अगर आप फिर भी चाहते हैं, आपने जाके मंडी में जाके बेचना है, बी आवर गेस्ट, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? देन अनदर पॉइंट, इंक्रीमेंटल रोल आउट. ठीक है, आईटीसी ने, ठीक है, इस अपना जो नया प्रोजेक्ट था उसको जो है वो एक बिग बैंग अप्रोच के साथ जो है उन्होंने नहीं किया. ठीक है, पहले जो है उन्होंने कुछ जो गांव थे उनको जो है उन्होंने सेलेक्ट किया एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जो है उन्होंने उसको जो इम्प्लीमेंट किया. एंड वंस इट वाज सक्सेसफुल, इट वाज रोल्ड फॉरवर्ड टू द अदर विलेजेस. सिंप्लिसिटी. जनाब सिस्टम जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि ये सिस्टम जो है इट वाज एक्चुअली क्वाइट सिंपल. जनाब एक एक कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कंप्यूटर जो था वो इंटरनेट से कनेक्टेड था. एक आपके पास जो है उन्होंने वेबसाइट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते थे तो जनाब वेबसाइट जो है ओपन हो जाती थी. उस वेबसाइट को जो है वो आपको जो है वो खुद से जो है फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करने की या कुछ काम करने की आपको जरूरत नहीं होती थी. ठीक है, बिकॉज आईटीसी पुश द डेटा रियल टाइम, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी आंखों के सामने जो है वो अपडेट होती चली जाती थी. तो द सिस्टम वाज एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू यूज, and that's why the farmers and the other people were drawn to use the system to gain information that was beneficial for them. देन बेस्ट फॉर इंडिया. ठीक है, उन्होंने जो है वो इस इनिशिएटिव को जो था, उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब के दिस इज समथिंग व्हिच इज गुड फॉर इंडिया. ठीक है, उन्हें पता था कि जनाब कि ये सिस्टम जो है वो जैसे ही जो है वो लॉन्च करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, दे विल कंसिडर इट एज क्या कहेंगे उसको, कि आप जो है वो अनड्यू जो है बेनिफिट लेने के लिए आप जा रहे हैं. ठीक है, आप जो है वो अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इसीलिए जो है वो ये एक थीम रखी अपने इस इनिशिएटिव के अंदर के जनाब, इट इज बेस्ट फॉर इंडिया, बिकॉज व्हाट दे प्रोजेक्टेड कि जी हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं
उससे जो है वो ये जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो सोयाबीन फार्मर्स हैं, ठीक है, इनकी जो क्रॉप्स है इसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वो इन्हें जो है ये एम्पावर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जो है वो हम एम्पावर भी कर देंगे, और इनकी जो फॉर एग्जांपल जो अर्निंग्स है, अर्निंग बढ़ा देंगे। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बेस्ट फॉर इंडिया, गुड फॉर इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के जो बेचारे जो पुअर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको एम्पावरमेंट मिल रही है, उसकी जो है वो हालत बेहतर हो रही है। अच्छा, अब ये जो हेडलाइन है, हाउ डिड प्रिंसिपल्स ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात जो है यहाँ पे ये हो रही है कि जब कभी भी आप कोई एक मेजर प्रोजेक्ट जो है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, खास तौर से जब आप एक मेजर आईटी प्रोजेक्ट जो है जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, देयर कैन बी वेरियस ऑब्स्टिकल्स दैट यू विल फेस। तो अब सवाल जो है ये है कि जनाब कि इन ऑब्स्टिकल्स को जो है वो आप किस तरह से जो है ओवरकम करते हैं। आईटीसी ई चौपाल का जो केस है, इट टेल्स अस दैट the company which is implementing the IT project, right? Or it can the same thing can be applied to other projects and other initiatives as well. The ITC case tells us that the company must adhere to certain principles no matter what. अगर कंपनी जो है वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है स्टक रहती है, अपने प्रिंसिपल से जो है वो डिविएट नहीं करती, तो ये ऑब्स्टिकल्स, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स जो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है वो हम उनके सामने आते हैं, उन्हें वो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई विल शो यू अ स्लाइड इन व्हिच आई हैव समराइज्ड दैट हाउ दे एक्चुअली यूज दीस प्रिंसिपल्स टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 कॉलम्स का जो टेबल है उसमें लेफ्ट साइड पर जो है आई हैव लिस्टेड द बैरियर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव लिस्टेड द प्रिंसिपल दैट वाज यूज्ड टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर बैरियर, ठीक है। तो पहला बैरियर क्या था? एंट्रेंच्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या प्रिंसिपल उन्होंने इस्तेमाल किया? ऑनर एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। तो पहला बैरियर जो था उनका वो ये था कि जनाब कि वो किसान जो एक अरसा दराज से जो है वो फसलें जो है वो अपने पुराने तरीकों से जो है वो उगाते चले आ रहे हैं और मंडी में बेचते चले आ रहे हैं, ठीक है। उनको किस तरह से जो है वो चेंज किया जाए, ठीक है, या किस तरह से इसका डील किया जाए। तो उन्होंने क्या उसूल बनाया? उन्होंने उसूल ये बनाया कि जनाब कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट सिस्टम है, जैसे संचालक को उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको आप ऑनर करें, उसको यूटिलाइज करें, एंड सेकेंडली जो उनका एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो इस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सेकंड बैरियर क्या था? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय फार्मर्स, ठीक है। ये एक बैरियर था कि एक फार्मर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको लैक कर रही है, उसको कैसे जो है ओवरकम किया जाए। क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट किया? प्रोवाइड क्लियर वैल्यू, कीप इट सिंपल। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया, ठीक है, सिस्टम जो था वो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था दैट वाज एक्चुअली वेरी क्लियर कि जनाब के इस सिस्टम की वर्थ क्या है। और सेकंड थिंग वाज कि जी सिस्टम जो था बड़ा सिंपल टू यूज था। थर्ड बैरियर लेजिस्लेशन, ठीक है, कि जनाब अगर जो है वो हम ये एफर्ट करते हैं और इस एफर्ट के नतीजे में जो है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो बीच में कूद पड़ती है और वो कहती है कि जनाब कि आपने जो है तो अपनी मोनोपोली बना ली है, या आप जो है वो अनड्यू प्रेशर जो है आप एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वो कावानीन बना देंगे, नहीं जनाब कोई कंपनी जो है वसूंगा काम नहीं कर सकती, तो उससे उससे कैसे डील किया जाए? बेस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। जनाब अब जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब कि हमारा जो सिस्टम है इट्स एक्चुअली ओपन फॉर एवरीवन, इवन इफ गवर्नमेंट वांट, गवर्नमेंट कैन सी अवर सिस्टम, कि जनाब हमने जो है वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी नहीं है कि जो कि हमने छुपाई है, या आप ये कहें कि जनाब के कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है फार्मर्स और आईटीसी के दरमियान है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की हालत को सुधारना चाहते हैं, तो वी एक्चुअली मीन इट। वी आर प्रोवाइडिंग देम द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन। अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, अदरवाइज हम उसको फोर्स नहीं कर रहे। द अदर बैरियर वाज द फियर्स ऑफ मिडलमैन, ठीक है। प्रिंसिपल क्या अडॉप्ट किया? इंश्योर प्रॉफिटेबल ऑप्शंस फॉर ऑल प्लेयर्स इन द चैनल। अब यहाँ पे जो है इनका कमीशन एजेंट जो बीच में थे, कमीशन एजेंट्स के लिए भी उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा भाई ठीक है ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब फार्मर के पास भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और उन्होंने किसी को ये भी नहीं कहा कि नहीं जनाब आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अब इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व हैं इस वैल्यू चेन में, इंक्लूडिंग द कमीशन एजेंट, जिसको पहले फार्मर इस्तेमाल किया करता था अपना
सोयाबीन मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद भी ऑप्शन मौजूद है कि जनाब कि मैं जो है वो पहले जो है जो नाजायज़ प्रॉफ़िट में मार्जिन में कमा लिया करता था, अब उस मार्जिन को जो है मैं थोड़ा-सा लो कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी भी चांस मौजूद है कि मतलब वो फार्मर्स के जो कि अभी भी मंडी में सोयाबीन बेचना चाहते हैं, डायरेक्टली आईटीसी को नहीं बेचना चाहते, तो मैं उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ और मैं अभी भी पैसे अर्न कर सकता हूँ। ठीक है जी। पोटेंशियल हाई कॉस्ट, अ सिस्टम ऑफ दिस नेचर, ठीक है, इज़ बेयर्स अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट टैग, ठीक है। उसको कैसे ओवरकम किया ना, उन्होंने ओवरकम ऐसा किया कि पहली बात तो ये है कि जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी या जो इक्विपमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट वाज अ वेरी बेसिक इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल इक्विपमेंट उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और सेकंडली दे वेंट फॉर इंक्रीमेंटल रोल आउट, ठीक है, बिग बैंग अप्रोच उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। अनदर बैरियर वाज द इलिटरेसी, ठीक है जी। अब किसान जो है बेचारा इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्या करे? उन्होंने कहा जनाब कि हम एक काम जो ये करते हैं, जो प्रिंसिपल उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जनाब कि ऑनर एग्जिस्टिंग ट्रस्ट। संचालक को जो है वो जनाब आप ट्रेन करें, संचालक को आप एजुकेट करें। जब संचालक जो है वो एजुकेट हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, तो संचालक जो है वो अपनी ही ज़बान, उसको पता है कि जनाब के फार्मर किस ज़बान में बात को समझता है। तो फार्मर जो है फिर उसको जो है वो बड़े आसानी से जो मतलब इस बात को समझ सकते हैं। वो जो इलिटरेसी का बैरियर है वो ओवरकम हो जाएगा। देन सस्पिशन ऑफ न्यू थिंग्स और चीटिंग, ठीक है। तो नया सिस्टम आया है, लोग कहें कि भाई इसमें जो है वैसा तो नहीं हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, ठीक है। नए मतलब नए तरीके से जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल किया? चॉइस। आपके पास चॉइस है। अगर आप समझते हैं कि जनाब कि हम जो है वो सिस्टम के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप इस सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर आप जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको जो है मंडी में ले जाके बेचना चाहते हैं डायरेक्टली, आप जाके बेच दें, हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देन द लास्ट बैरियर वाज़ टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? कीप इट सिंपल। आपने सिंपली जो है वो उनको बेयर बोन पीसी आपने प्रोवाइड किए, ठीक है। कोई फैंसी टेक्नोलॉजी, कोई फैंसी स्टफ जो है वो आपने उनको नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप फैंसी स्टफ आप उनको देंगे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप उनको बना के देंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है, येस देयर विल बी अ टेक्नोलॉजी रिस्क कि जनाब कि अगर लोग जो है वो समझ नहीं पाए तो वो जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, जो पूरी की पूरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इट विल बी वेस्टेड। अच्छा जी। अब हम ये देखते हैं जनाब कि ये जो ई चौपाल का जो मॉडल है, how the ITC was able to create the value out of implementing this model. ठीक है, so these are the 5 points that how the value was created. ठीक है, uh, first they were able to reduce the uncertainty for the farmers. ठीक है, ये हमने बात की ना कि जनाब के अब आपने उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। कि क्या होगा मेरी फसल के साथ, ठीक है, फसल से जो है पूरे पैसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑन ग्रोइंग टेक्निक्स, आपने अपनी फसल किस तरह उगानी है, ठीक है, नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे आप जो है वो ज़्यादा बड़ी फसल कर सकते हैं सिमिलर अमाउंट ऑफ एफर्ट के साथ, ठीक है। डिलीवरिंग एक्सेस टू रूरल मार्केट्स, ठीक है, आईटीसी को जो है वो रूरल मार्केट्स तक जो है वो एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो नतीजा जो है वो ये है कि दैट दे कैन इंक्रीज देयर बिजनेस, ठीक है। और जैसे कि हमने बाद में हमने पहले बात की कि जनाब के डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अप स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है वो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंट फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, पहले जो है वो किसान जो है वो मंडी जो है सामान लेके जाया करता था और वहां पे जाके जो है उसको भेजा करता था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो थे वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो नहीं थे, there were a lot of inefficiencies, ठीक है। it took a lot of time to bring the crop into the mandi and then sell it, right। अब अगर आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो आईटीसी कैन प्रोक्योर द क्रॉप डायरेक्टली फ्रॉम यू, तो फिर आपकी मंडी की जाने की मेहनत जो है बच जाती है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ फेयर एंड मोर विजिबल मार्केट, ठीक है। जो पुराना सिस्टम है, पुराने सिस्टम में जो है वो हम देख रहे हैं कि जनाब के यहाँ पे फेयर डीलिंग जो है वो नहीं है, ठीक है। कमीशन एजेंट बीच में है, कमीशन एजेंट जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है सिस्टम को टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। और मार्केट में एक्चुअली जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रांजेक्शन जो है विजिबल नहीं है, कौन सी पार्टीज है, कितनी पार्टीज है, किसके पास जो है वो कितना पैसा जो है वो जा रहा है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द वेज थ्रू विच दिस सिस्टम क्रिएटेड वैल्यू। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि ठीक है ये आईटीसी चौपाल इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हो गया, बेनिफिट भी अचीव हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, दैट इज एक्चुअली वंडरफुल, ग्रेट, बेहतरीन।
अब सवाल ये है कि जी कि आईटीसी जो है वो अब आगे के लिए क्या सोच रहा है कि ये जो ई चौपाल इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने पहले बात की कि आईटीसी जो है उसका जो नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि पहले तो ये कि अभी उसने जो है वो उसको इस मॉडल को अपनी एक डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया, दैट इज सोयाबीन। ठीक है, देयर कैन बी अदर डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसमें इनका ये एग्री बिजनेस यूनिट जो है डील कर रहा है, जैसे मैंने बात की थी वीट एंड सो ऑन। तो एक तो ये हो सकता है कि जनाब कि ये इस मॉडल को एक्सटेंड करें अपनी दूसरी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उनके पास जो है वो ये है कि ये अपने इस मॉडल को एक्सपेंड करें अप स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अप स्ट्रीम प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जनाब मिसाल के तौर पर जो है वो आप उनको जो है फर्टिलाइजर सेल करें। ठीक है, जैसे वो आप कहते हैं ना वो सोना यूरिया और वो खाद और वट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, इसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल आप उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, फसलों की इंश्योरेंस होती है बाकायदा, कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी फसल जो है वो मतलब जो क्रॉप है अगर आपकी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी अनफोर्ड मतलब मिसाल के तौर पर बारिश से या आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो उस सूरत में जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कैन एक्चुअली कंपनसेट यू फॉर योर लॉस। दिस इज अनदर थिंग दैट दे कैन डू बाय यूजिंग द सेम मॉडल। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर चाहें तो जनाब क्या वो अगर एग्री बिजनेस से वो जो है बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो अपने क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो वो चाहें तो अपने इस मॉडल को क्योंकि सक्सेसफुल तो हो गया है, तो वो उसको जो है वो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉफ़ी है, सी फूड है, व्हीट है और सो मेनी अदर थिंग दैट दे कैन डू। ठीक है, सो दिस इज द end of the discussion of the ITC e-Chupal initiative. Now, the second case, the tale of two airlines in the network case. ठीक है, मैं इसको जो है वो आपको अभी बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा। दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट केस स्टडी, आई थिंक 2 or 3 पेजेस समथिंग लाइक दैट। मैं आपको जो है वो ब्रीफली सिर्फ इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा एंड देन आई विल आस्क यू टू गो थ्रू दिस केस योरसेल्फ। ठीक है, and once again if there are any particular question that you can ask it. स्टोरी जो है वो ये है कि जनाब के एक प्रोफेसर साहब ने जो है वो एक ब्रिटिश एयरवे मतलब एयरलाइन से, जो कि बेसिकली ब्रिटिश एयरवेज है लेकिन उसका नाम उन्होंने जो है वो चेंज मेंशन नहीं किया। ब्रिटिश एयरलाइन को इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने यूएस से बरतानिया जो है वो ट्रैवल किया है। ठीक है, और इससे पहले जो है वो एक अमेरिकन एयरलाइन के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इन दो एयरलाइंस के साथ जो उनका जो ट्रैवल है उसमें जो उनका एक्सपीरियंस है उसमें बड़े सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। खास तौर से जो उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन के साथ जो ट्रैवल किया है उस ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है दैट वाज एक्चुअली नॉट गुड एट ऑल फॉर हिम। मल्टीपल जो है वो मतलब मिसहैप्स हुए हैं। मिसाल के तौर पर जो है उन्होंने जब वो टिकट अपना लेकर गए तो जो जो बुकिंग एजेंट था, बुकिंग एजेंट को पता नहीं था कि जनाब के ये फुल फेयर टिकट है। वो जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स माइल जो आपके होते हैं उसके नतीजे में आपको जो टिकट मिलता है ये वो टिकट नहीं है। मतलब कस्टमर का जो स्टेटस है उसके बारे में जो है उनका ख्याल ये था एयरलाइन को जो है इन्फॉर्मेशन होगी, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो देयर वर मैनी थिंग्स that this particular professor or this particular person thought that the airline should know based on his experience with the American airline. लेकिन वो assumption जो थे they it appeared that these assumptions were not right or they did not come true. So the case actually talks about के ये जो उनके different assumptions थे, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती तो ये जो इन हजरत के जो बहुत सारे जो एजम्पशंस थे वो किस तरह से जो है सही हो सकते थे, या मिसाल के तौर पर जो है वो इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ब्रिटिश एयरलाइन के साथ वो एक्सपेक्टेशन जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रू हो सकती थी। मैं बात जो ये कर रहा था कि आपने जो है वो इस केस स्टडी को जो है वो रीड करते हुए जो क्लास प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पर जो मैंने अपलोड की है, ठीक है, इसको रीड करते हुए आपने जो ऑब्जर्व करना है वही ऑब्जर्व करना है कि डेफिनेटली जो प्रोफेसर के जो एजम्पशंस थे या जो एक्सपेक्टेशंस थी इस ब्रिटिश एयरलाइंस के साथ वो इस बात पर बेस कर रही थी कि उनका जो है जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था यूएस एयरलाइन के साथ, ठीक है, वो कैसा था। तो अब हमने जो है वो यहाँ पे इस बात को ऑब्जर्व करना है कि उस दूसरी एयरलाइन है यूएस बेस्ड एयरलाइन ने टेक्नोलॉजी को जो किस तरह से जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, और ब्रिटिश एयरलाइन जिसके साथ जो है प्रोफेसर साहब ने ट्रैवल किया वो कहाँ कहाँ पर जो है लैक करी थी। So that means we have to draw a comparison. We have to do a comparison that how the British airline can become more effective by using the technology in the same way
as the US airline did. Okay. Okay, now I shall not go to the third case today because it could be very taxing for you, because I have already gone through two readings and two case studies so far. Although the second case study, that is Tale of Two Airlines and the Network Age, is not long enough, but in any case, the points that you need to go through, they will require some good reading on your part. Okay. So now what I will do is that I shall stop right here. And as our standard operating procedure is that once my discussion is over, so I shall invite you guys to ask any questions